Hi guys, welcome to the official YouTube channel of 3 Years LLB Legal Edge. I hope you guys are doing well. You guys are healthy, staying fine in this hot, humid weather. Do let me know what all you guys are doing. Are you guys on your semester break of your graduation? You are in your final semester of your final year of your graduation, preparing for any exam. At what juncture you are, because today we are here to discuss about an add-on to your current degree, add-on to your current career trajectory out there, that is 3 years LLB के एक reality check के बारे में डिस्कस करें. Everyone is talking about 3 years LLB as an add-on, but उसका return क्या है? If I go to any college to do 3 years LLB, after that what? आज हम इन सारे एस्पेक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे. हाउ द ट्रैजेक्टरी कैन मूव अहेड, व्हाट ऑल वी कैन डू एंड व्हाट ऑल वी कैन एक्सपेक्ट आउट ऑफ दिस. कौन से कॉलेजेस होते हैं, कौन से एग्जाम्स होते हैं, कैसे जाना है. वी विल डिस्कस एवरी एस्पेक्ट ऑफ द सेम. कुछ मिस आउट हो जाए या कुछ लगे कि वांट टू नो मोर, कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज ऑलवेज अवेलेबल टू यू. तो आज की वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द 3 years LLB रियलिटी चेक. कई लोगों ने हमको सिर्फ बताया है या कुछ भी बोला है. डोंट बिलीव इन दैट. ऑलवेज डू योर ओन रिसर्च. ऑलवेज लुक एट योर, ऑलवेज थिंक इट विथ योर एंगल कि इज दिस समथिंग विच इज गिविंग मी दैट फीलिंग कि ये काम मैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड कर सकता हूँ, या दिस इज समथिंग जिसके लिए तो मैं वेट कर रहा था, अरे यही तो नहीं था मेरे पास कि मैं नहीं कर पा रहा था. Don't believe on anything that people are saying out there. Always do your own research, and for easing up your research, Legal Edge is always there for you. You can visit our website, you can visit our YouTube channel. Do subscribe to the same. We keep coming up with such content which can always help you get your hemisphere with respect to 3 years LLB or with respect to law gets widen up day by day. Okay? So today we are going to discuss about students who are preparing for UPSC, are in BA, BCom, BBA or any graduation, or have completed graduation, engineering graduates, CACS or any management exam aspirant. We are going to discuss about all those students or anyone working at any company. It's time to pivot, think about it and move. Okay? So these are all the people who are going to be covered in today's video, and students who are planning to do 3 years LLB or planning to upgrade their current profile. क्या 3 years LLB ला के दे सकता है? वी आर गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स मूव अहेड. सबसे पहले द मोस्ट अंडररेटेड डिग्री, मार्क माय वर्ड, द मोस्ट अंडररेटेड डिग्री. बिकॉज अवेयरनेस पहली चीज, दूसरी चीज यू हैव नॉट डन योर ओन रिसर्च. Do your own research, look at the people who have done law and look at them standing somewhere at the highest pedestal of their career out there, शायद जो वो अभी नहीं होते. ठीक है. सो द रीजन बीइंग इज मेन स्ट्रीम बहुत क्राउडेड है, विच इज वेरी ट्रू. मेन स्ट्रीम इज वेरी क्राउडेड. पीपल आर हसलिंग देयर, कंपटीशन बहुत है. हम मेन स्ट्रीम में हसल कई बार सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि कई लोग कर रहे हैं तो मैं भी कर लेता हूँ. एज आई टोल्ड यू, हमने अपनी रिसर्च की नहीं, हमने कहीं सुनी बातें सुनी कि इफ यू डू दिस ये हो जाएगा, और हमने कर लिया. सो दैट अ लॉट ऑफ मेन स्ट्रीम में जितने भी एग्जाम्स हैं उसमें आधा क्राउड तो सिर्फ इसलिए है. द रीजन बीइंग इज उनने कभी खुद ने नहीं सोचा. दे आर जस्ट देयर. But in 3 years LLB, this is a strategic pivot. The reason I'm saying is a 3 years LLB can completely change the trajectory जिसकी मैं बात करता हूँ हर बार और अभी भी कर रहा हूँ. The reason being is you already have something. You have BA, BCom, engineering, CA, CS or any degree out there. You have already the same with you. Adding 3 years LLB can be a stack of the same, and always having two stack or always having a stack can always be beneficial than having just a rake. ठीक है. नेक्स्ट थिंग, डिफाइनिंग द पाथ दैट 3 year LLB looks like. तो सबसे पहले तो एंड गोल इज परसुइंग लॉ. तो लॉ कैन बी परसुड through two fields. After your class 12th, you can go for 5 years integrated LLB, which is available out there and which is the most discussed out there. जिसका मतलब अगर आप एग्जाम देखो तो CLAT is the most famous exam और ALET. ठीक है. These are the two exams for 5 years of law, whereas the end goal, that is pursuing law, always stays the same.
you can always reach this destination either through this. अगर ये miss out हो गया है, many of the aspirants who would have written CLAT, many of the aspirants would have prepared for 5 years LLB, but due to some reasons नहीं हुआ होगा, या plan change हो गया होगा, या कई लोगों को उस टाइम पे awareness नहीं होगी with respect to law. ट्रस्ट मी, आप अभी लेट नहीं हुए हो, क्योंकि 3 years LLB इज ऑलवेज द ऑप्शन आउट देयर. कभी कभी ऐसा लगता होगा आपको भी कि एक और ऑप्शन होता या एक और मौका मिल जाता तो आई वुड हैव डन समथिंग एट अ वेरी ग्रेटर स्केल, आई वुड हैव चेंज्ड अ लॉट, क्योंकि मेरे को पहले अपनी जो गलती पता है वो पता है ना. एक मौका और दे दोगे क्या? वो ये रहा आपके पास. if you missed something here, or if there can be any reason, awareness with respect to exam preparation, with respect to any aspect, कुछ भी हुआ हो, you are still in the game to achieve the ultimate goal of law, that is through 3 years. ठीक है, एवरीथिंग इज सेम, हर चीज सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है. यू गेट एवरीथिंग सेम. बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्ट्रेशन कराते हो, यू कैन प्रैक्टिस इन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लॉ फर्म्स, इन हाउस universities as professor, researchers. You can work at policy think tanks, anywhere. क्यों? क्योंकि they are reaching at the same ultimate goal where both of them started. ठीक है. अब second चीज, the point I was discussing was degree stacking. So what is degree stacking? Basically you have already one degree out there, which is your base degree. You have already completed the same. It can be BA, BPA, BCom, any degree it can be. ठीक है. So this is your base salary that is already out there. You have already gained the skill set in this degree. It can be anything. BA है, accountancy and everything you have. BCom है, BCom है, you have accountancy, business and everything. You have BBA, management things you have already done. यहाँ पे एक skill set हमारे पास already आ गई है. Add it with the 3 years LLB skill set. एंड यू आर गोइंग टू बी द डोमिनेटिंग इन द मार्केट, क्योंकि आपकी डिमांड सबसे ज़्यादा होगी. सिंपल सा रीज़न है, सप्लाई एंड डिमांड. जो सबसे कम नंबर्स में होता है, जिसकी डिमांड ज़्यादा होती है, डेफिनेटली दे मेक ग्रेटर थिंग्स. So you will always be in a dominating position in the market. ठीक है. So if we talk about things out there, तो simple सी चीज समझो. If you have done engineering, with that do law, you can be an ultimate force in technology law, IP law. You can join law firms as well. Law firms have their own team of tech and IP. Then you have done CA, CMS or CS. Corporate law, finance is a level playing field where you can go for. Acha, do you know law firms or any institution will always have a CS and a lawyer, right? But अगर आपके पास दोनों है तो can you think आप क्या हो सकते हो? You can be the person that any institution will always look forward. They need you kind of situation create हो जाएगी. ठीक है. Then if you have done MBA, again you can be a corporate strategy or MBA. Then you have multiple other domains out there which are always going to be an add-on to your degree, which will always make you an ultimate force out there. ठीक है. मूविंग अहेड, अगर मैं एक इंस्टीट्यूशनल लैंडस्केप की बात करूं, टीयर 1, टीयर 2, बेसिकली ऑल द कॉलेजेस आर गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड ऑल द कॉलेज आर द बेस्ट कॉलेजेस इन इंडिया. इन्हीं कुछ कॉलेजेस के नाम पे लॉ इन द कंट्री इज डिस्कस्ड. अगर लॉ की बात होती है तो इन कॉलेजेस का नाम हमेशा आता है. इफ यू टॉक अबाउट टीयर 1 कॉलेजेस, यू हैव एनएलएस बैंगलोर, गोज विदाउट सेइंग. एनएलएस बैंगलोर के बाद ही कोई लॉ कॉलेज आएगा. ठीक है. So for this you have your exam called NLSAT exam. NLSAT कराता है, इसमें आपके पास 120 सीट्स होती हैं. Then you have Faculty of Law, Delhi University. Then you have ILS Pune, GLC Mumbai. ये दोनों आपके थ्रू MHCT होते हैं. MHCT के थ्रू आप ये दोनों कॉलेजेस टारगेट कर सकते हो. इफ वी टॉक अबाउट स्टेट स्पेसिफिक और रीजनल कॉलेजेस, you have BHU, Punjab University, PU Chandigarh, then you have GLC Chennai, Osmania University, Lucknow University, and many more universities. If we talk about exams that you can target, एक मैंने आपको बताया NLSAT, one is MHCT, then you have CUET, then you have NLU उड़ीसा का अपना एग्जाम है, DSNLU विशाखापट्टनम का अपना एग्जाम है, CNLU पटना का अपना एक एंट्रेंस एग्जाम है, NLU सिक्किम has started their 3 years LLB, they have their own exam.
there is a long list out there of government colleges that you can target, and the return of investment or the return of time in these universities are going to be the ultimate thing that you would have never even thought about, right? So you can always target these colleges. These are the colleges that are out there, those are always discussed, right? नेक्स्ट थिंग, अब एक अगर मैं आपको एक कंपैरिजन एनालिटिक्स बता दूं ऑफ द मोस्ट डिस्कस्ड कॉलेज डीयू, जीएलसी, मुंबई एंड आईएलएस पुणे, सो दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक. फीस डीयू की थोड़ी कंपैरेटिवली कम होती है, जीएलसी की भी थोड़ी कम होती है, एनएलएस की थोड़ी सी ज्यादा होती है, कंपैरेटिवली हाई एंड पे होती है, बट उसका इकोसिस्टम आपको बहुत स्ट्रांग मिलता है. यू गेट द बेस्ट एक्सपोजर ऑफ कॉर्पोरेट हियर, इन हाउस हियर, यू हैव द बेस्ट एक्सपोजर, क्योंकि एनएलएस बैंगलोर गिव्स यू द strongest and the biggest alumni network in corporate industry. ठीक है. Then if we talk about GLC Mumbai, again this will always, these three colleges, अब एक चीज समझो, इनकी लोकेशन देख रहे हो आप, DU दिल्ली, GLC मुंबई, NLS इन बैंगलोर, द टॉप थ्री सिटीज. यहाँ पे हर लॉ फर्म का ऑफिस है, हर इन हाउस कंपनी का ऑफिस है, बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत बड़े बड़े थिंक टैंक्स हैं, banks हैं, PSUs हैं, all are out there. For PSUs, you will have to take CLAT PG after that if you want to enter. But think of it like you are not only going to do your 3 years LLB at these institutions, but you will also have the exposure to work with tier 1 law firms, big in-house councils, big in-house teams. These are the opportunities जो ये cities provide और ये colleges provide करेंगे आपको. Right? You can do running internship if you have the time. You can definitely have the best exposure out there. एक दूसरी सिटी के स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है, दे हैव टू ट्रैवल और दे हैव टू वेट फॉर एन इंटर्नशिप ब्रेक, बट फॉर यू, यू ऑलवेज हैव द डोर्स ओपन. 12 मंथ्स आपके पास ऑप्शन है. इट इज लाइक सब कुछ पड़ा है, व्हाट ऑल यू कैन टेक, टेक इट, सिंपल सी चीज. बट द ओनली पॉइंट इज ऑफ एग्जीक्यूशन, वो सिर्फ आप कर सकते हो, नोबडी एल्स कैन एग्जीक्यूट फॉर यू. ठीक है. देन अब प्लेसमेंट रियलिटी चेक, जो एक छोटी सी चीज है, वो ये है कि लॉ मतलब नो प्लेसमेंट, ओनली कोर्ट वर्क, लिटिगेशन ही बस करोगे, कोर्ट जाओगे, बट इट इज नॉट ट्रू. एंड इवन इफ सिर्फ लिटिगेशन है, जस्ट गो सी लिटिगेंट्स हु आर मेकिंग और हु आर प्रिंटिंग मनी एट टन्स. एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि दिस इज नॉट अ क्विक कैश फील्ड. अब ग्रेजुएट और यू आर मेकिंग क्विक कैश, अगर क्विक कैश बना रहे तो शायद आपके एंड तक भी आपका उसमें 10-15% इंक्रीमेंट होगा या 10-15% ऊपर जाओगे उस क्विक कैश से. बट लॉ एज अ फील्ड इज ऑलवेज रिवॉर्डिंग द टाइम एंड एफर्ट दैट यू पुट इन. यू स्टार्ट योर लिटिगेशन, यू वर्क ऑन इट, यू वर्क ऑन द स्किल सेट, यू हैव द बेस्ट क्लाइंट नेटवर्क. एक टाइम ऐसा आएगा जहां पे आपको केसेस के लिए मना करना पड़ेगा, एंड देयर इज नो लिमिट टू मनी. सो अगर लिटिगेशन भी करना है तो दैट इज ऑल्सो द बेस्ट फील्ड आउट देयर. बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ लिटिगेशन ही ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास आफ्टर योर 3 years ऑफ LLB. सो व्हाट दीज कॉलेजेस प्रोवाइड इज, टॉप कॉलेजेस प्रोवाइड स्ट्रक्चर करियर लॉन्चेस, वो बिल्कुल सही बात है. सबसे पहले तो इंटर्नशिप सपोर्ट, जो मैंने आपको बताया, इन 3 सिटीज में रहोगे, पहली चीज तो आपके पास लोकेशन एडवांटेज है. दूसरा, आपके पास नेटवर्क एडवांटेज है. इस कॉलेजेस में आपके पास जो एलुमनाइज हैं या आपके जो बैचमेट्स हैं, सीनियर्स हैं, they always discuss about something fruitful and something that is going to be rewarding at law firms, in-house or any institution we talk about. ठीक है. Then you have recruiters access. Tier 1 law firms approaches any news and top tier government colleges only, but they also approach other colleges, but they can always have the best bet at you. ठीक है. Then these colleges have dedicated placement and internship cell. Then they have the elite alumni network that I told you abhi. ठीक है. If we talk about the placement, who dominates, NLS Bangalore goes without saying NLS Bangalore is at top. Then we have GLC Mumbai, then we have DU, and then we have ILS Pune. Many of students of these colleges are already working in institutes we are talking about, right? They will always give you the most benefit out there. ठीक है. अब दूसरी चीज, डाइवर्सिंग द पाथवे लिटिगेशन वर्सेस, अगर कॉर्पोरेट की बात करें तो कई लोगों को ये लगता है कि सिर्फ लिटिगेशन ही तो एक ऑप्शन है लॉ करने के बाद, बट एक कॉर्पोरेट भी आपके पास ऑप्शन हमेशा अवेलेबल रहता है. ठीक है. तो व्हाट ऑल लिटिगेशन ब्रिंग्स फॉर यू, बेसिकली लिटिगेशन विल ब्रिंग्स यू इंडिपेंडेंस, प्रेस्टीज, अल्टीमेट फाइनेंशियल अपसाइड. द रीजन बीइंग इसमें कोई लिमिट नहीं है, कितनी मेहनत कर रहे हो, कितना टाइम लगा रहे हो, उस हिसाब से रिवॉर्ड आपको मिलता जाएगा. क्विक कैश नहीं देगा, बट इतना कैश एक टाइम पे दे देगा जब आपको
सोचना भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट में यू हैव हाई स्टैंडर्ड सैलरी। इफ आई टॉक अबाउट अ टीयर 1 लॉ फर्म, 12 से 20 लाख रुपए की आपकी एवरेज सैलरी होती है, 20 लाख के आसपास ही एवरेज सैलरी होती है। देन यू हैव स्ट्रक्चर्ड करियर ग्रोथ और फास्टर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि इसमें ईयर ऑन ईयर आपका प्रमोशन होता है। यू गो टू A0, A1, A2, देन सीनियर एसोसिएट, प्रिंसिपल एसोसिएट एंड पार्टनर लेवल तक यू गो। हाँ, यहाँ पे थोड़ी सी एक चीज जो चैलेंजिंग है वो है लॉन्ग डिमांडिंग आवर्स। एंड व्हेन आई से चैलेंजिंग है, इसका ये मतलब है कि सही में चैलेंजिंग है, यू हैव टू कमिट योरसेल्फ, ठीक है। देन यू हैव थोड़ा सा प्रेशर बिल्ड ज़्यादा होता है, क्योंकि हाई स्टेक्स क्लाइंट है, पीपल आर आउट देयर जिनका बिजनेस आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो देयर विल बी प्रेशर आउट देयर, ठीक है। बट मोस्ट रिवॉर्डिंग, वेरी वेरी रिवॉर्डिंग, ठीक है। तो अगर हम एक सैलरी स्टेयरकेस जो हमने देखे, अगर यहाँ पे इफ वी टॉक अबाउट द सैलरी स्टेयरकेस आउट देयर, तो लिटिगेशन विल गिव यू समवेयर अराउंड 3 to 8 lakhs per annum in starting. For starting it can be 3 lakhs. If we go to compliance, then it can be 5 to 10 lakhs. In house 6 to 12 lakhs, corporate 12 से 20, and top performers at any institution can go to 20 to 25 lakh rupees per annum. दिस कैन ओनली बी एड ऑन। इसमें कुछ भी डाउन साइड नहीं जाएगा, हर चीज अपसाइड ही जाएगी, ठीक है। इनमें किसी भी सेक्टर में यू ज्वाइन, यू आर गोइंग टू मिंट मनी आउट देयर, ठीक है। अब एक रियलिस्टिक अगर मैं आपको बता दूं, तो क्या एक डीयू हमको प्रोवाइड कराता है, तो डीयू में आपका अप्रॉक्स 50,000 रुपीज यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन योर 3 years LLB। सैलरी अगेन 6 to 12 लाख रुपीज डिपेंडिंग ऑन द सेक्टर यू चूज। ये मैंने बीच की सैलरी रखी है सारे सेक्टर्स मिला। देन अगेन GLC मुंबई अगेन सेम, बट इसमें थोड़ा सा मीडियम ऊपर हो जाता है। द रीजन बीइंग इज दिस कॉलेज आल्सो गिव्स यू अ कॉर्पोरेट एक्सपोजर आउट देयर। डीयू में थोड़ा सा कॉर्पोरेट एक्सपोजर कम है, GLC में ज्यादा है, ठीक, कंपेरेटिव। देन लास्ट कम्स अप इज NLS बैंगलोर, दैट इज NLSAT। यहाँ की फीस ज्यादा है, 12 से 15 लाख रुपए है, बट अगेन इफ यू गेट इनटू अ टीयर 1 लॉ फर्म्स आर गोइंग टू पे यू अ हैंडसम सैलरी, डोंट वरी अबाउट दैट। आपने जितना 3 साल में लगाया होगा उससे ज्यादा 1 साल में निकाल लोगे वहां से। बोनसेस होते हैं, मल्टीपल अदर थिंग्स आर आउट देयर, परफॉर्मेंस बेस्ड थिंग्स आर देयर। सो these are the 3 segments out there. You can always plan your preparation, you can always plan your career trajectory based on this, ठीक है। then coming up the dilemma थोड़ा सा UPSC aspirants को जो रहता है, looking at the exam cycle, looking at the attempts, looking at the फ्लक्चुएशन यूपीएससी इज डूइंग, तो इसमें एक कैलकुलेटेड रिस्क यू कैन ऑलवेज हैव टेक। सबसे पहली चीज तो ये है कि अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, यार यू हैव स्पेंट थोड़ा सा टाइम आउट देयर इन योर प्रिपरेशन, दिस इज नॉट योर फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट, दिस इज समथिंग अ गुड अटेम्प्ट ऑफ योर्स। तो I would also suggest you to go for a 3 years LLB along with your UPSC preparation. The reason being is it will never be कि जब attempts exhaust हो गए, so I definitely want कि you get into UPSC, you get into services, all the best with your preparation, do really well. But we also have to keep our mindset like this, always prepare for the best and be ready for the worst. अगर हमने ये कर लिया, then nobody can even touch us in the market, ठीक है। हम किसी एक दिन पे जाके ब्लैंक नहीं हो जाएंगे, डेड एंड ब्लैंक नहीं होंगे। हमने यूपीएससी की प्रिपरेशन की, हमारे पास 3 years LLB हमारे साथ ऑप्शन था, वी अपीयर्ड फॉर यूपीएससी, इट वेंट वेल, वेरी गुड। गो इन इंटरव्यू, बोलो कि मैंने ग्रेजुएशन के साथ 3 year LLB भी किया है, ऑलवेज एन एड ऑन। जब कोई आप जब 2 स्किल सेट बताते हो तो आपको भी लगता है ना कि यार मेरे को 2 स्किल सेट है, थिंक इट लाइक दैट, उसमें भी हेल्प करें। इफ नहीं काम किया, still you want to get into services, judiciary is always available to you. Get into judicial services, get into litigation, get into corporate law, policy making, think tank, policy making, public policy, तो आपको बहुत rewarding भी लगेगी, क्योंकि they will reward you a lot. If you have already prepared for UPSC and you getting there is something that you are the candidate needed there, ठीक है। अब एक सेल्फ असेसमेंट खुद के लिए कर लेना, इज लॉ एक्चुअली फॉर यू और नॉट। तो सबसे पहले तो लॉ इज फॉर एवरी एस्पिरेंट आउट देयर। बस एक चीज ये देख लेना जो ये है, इफ यू हेट रीडिंग राइटिंग, लॉ कैन बी चैलेंजिंग फॉर यू, लॉ कैन बी वेरी चैलेंजिंग फॉर यू। रीडिंग राइटिंग इज द कोर फॉर लॉ, ठीक है। देन इफ यू वांट क्विक कैश आउट देयर, लिटिगेशन विल नॉट गिव यू क्विक कैश, बट हाँ इतना कैश दे देगा कि वो क्विक कैश वालों को आने वाले टाइम में आप बहुत पीछे छोड़ के आगे चले जाओ, ठीक है।
नेक्स्ट थिंग, अब एक ऑब्जेक्टिव रैंकिंग देख लें जो हमने पूरा डिस्कशन किया। तो अगर मैं बेस्ट आरओआई की बात करूं तो डीयू फैकल्टी ऑफ लॉ, जीएलसी मुंबई एंड बीएचयू आर द टॉप 3 कॉलेजेस. If I talk about corporate exposure, NLS Bangalore, GLC Mumbai and ILS Pune are the best colleges. If I talk about brand value, NLS Bangalore goes without saying, DU goes without saying, GLC Mumbai comes up with a prestigious history of brand value. बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ पे से ग्रेजुएट हुए हैं, ठीक है. देन इफ आई टॉक अबाउट लिटिगेशन इकोसिस्टम, डीयू कैन never be at any other position apart from rank 1. Reason being is सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ट्राइब्यूनल्स इतने एक्सेस देता है आपको, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिटिगेशन बैकिंग है डीयू की कि you can be an ultimate force in the litigation industry. Then you have GLC Mumbai and BHU out there. GLC Mumbai is also a very good university if you want to plan, if you are planning for 3 years of LLB out there, ठीक है. और लिटिगेशन आउट देयर, ठीक है. लिटिगेशन जीएलसी मुंबई विल गिव यू अ वेरी गुड एक्सपोजर क्योंकि बहुत बड़े बड़े लॉयर्स ऑलरेडी ग्रेजुएट्स हैं फ्रॉम जीएलसी मुंबई एंड दे आल्सो हैव वेरी गुड ऑफिसेज आउट देयर इन मुंबई, ठीक है. अब दूसरी चीज क्या है, फाइनल वर्डिक्ट इज 3 years LLB worth it preparing in 2026? Yes, it is worth it. 2026 में के सारे एग्जाम्स हो गए हैं तो 2026 इज गोइंग टू बी प्रिपेयरिंग फेज, ठीक है. हम 27 टारगेट करें क्योंकि 26 के मेजर मेजर सारे एग्जाम्स हो गए हैं. So yes, for the right students who are going to looking for a career in advocacy, judiciary, corporate law, compliance, or anyone looking for consultancy, policy making, is all that is out there. It is just आप कौन सा pick करते हो, ठीक है. अब not because it is easy, not because it's guarantee placement, but because it unlocks an entire ecosystem of power, which is very true. So basic जो मार्केट में एक मिथ है बहुत बड़ा, वो है कि प्लेसमेंट को लेके एक बहुत बड़ा मिथ है, कोई भी कॉलेज ऐसा नहीं है जिसमें आप जाओगे और नौकरी लग जाएगी, ठीक है. इवन इफ यू गेट इनटू अ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ 5 years LLB और 3 years LLB, यू हैव टू डू योर पार्ट, राइट. इट इज नॉट लाइक कि कॉलेज में हो गया तो बस कंपनी तो ले ही लेगी. यू हैव टू डू इंटर्नशिप, यू हैव टू डू research, you have to publish research paper, you have to do competitions out there, you have to participate in a lot of co-curricular activities out there. ये सारी आपकी प्रोफाइल बिल्ड होती है क्योंकि लॉ तो हर कॉलेज में सेम है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ लॉ टॉट एट एनएलएस बैंगलोर और एनी रीजनल कॉलेज? कोई डिफरेंस नहीं है, लॉ तो सेम है. But the difference is of the ecosystem, the difference is of the churning that student goes through, the difference is because of the hustle that student do at these colleges. वो सिर्फ वहाँ पढ़ने नहीं गए हैं, वो वहाँ पे इंटर्नशिप कर रहे हैं. शायद बाकी कॉलेजेस के जो 2 बजे 3 बजे क्लासेस खत्म हो गए, आफ्टर दैट स्टूडेंट्स आर डूइंग समथिंग विद रिस्पेक्ट टू देयर पर्सनल वर्क और समथिंग विद रिस्पेक्ट टू दैट. एनएलयूज के बच्चे या गवर्नमेंट कॉलेजेस, टॉप टीयर कॉलेजेस के स्टूडेंट्स उस टाइम पे इंटर्नशिप करने जा रहे हैं, उस टाइम पे रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, उस टाइम पे कॉम्पिटिशन्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं. सो ये सारी चीज़ें हम डिस्काउंट कर देते हैं और हमको लगता है कि बस कॉलेज चले गए इसलिए उनकी नौकरी लगी. कभी ऐसा नहीं होगा. दे हैव हसल्ड अ लॉट, ठीक है. लास्ट थिंग, द बेस्ट टाइम टू स्टडी law was after 12th. The second best might be right after your graduation where we are standing right now, ठीक है. So goes without saying, if you are preparing or if you have done your graduation, if you are preparing for any exam and if you are looking to pivot your career trajectory right now, or if you are looking for an ultimate growth, 3 years LLB can be the best option out there, best option out there. एंड इट गोज विदाउट सेइंग द कॉलेजेस, द एग्जाम्स आई हैव मेंशन्ड, इन सारे कॉलेजेस का नाम आपने सुन रखा है. इसमें से कोई भी कॉलेज ऐसा नहीं होगा जिसका नाम आपने पहली बार सुना होगा, राइट. इन सारे कॉलेजेस का नाम आपने सुन रखा है. मैंने आपको एक पर्सपेक्टिव दिया व्हाट दीज कॉलेजेस कैन ब्रिंग इन फॉर यू, व्हाट ऑल दे हैव फॉर यू. बट अगेन एज आई से, एवरीथिंग कम्स डाउन टू वन थिंग विच इज एग्जीक्यूशन, और वो सिर्फ आपके हाथ में. Start executing. If you feel stuck anywhere, Legal Edge is always there for you. If you feel any confusion with respect to that, if you need any information with respect to that 3 years LLB exams preparation, do visit our website toprankers.com. If you want to know about any exam, do visit our YouTube channel. We have information about all the exams on our channel. And if you have any confusion, you want to discuss about anything further, feel free to reach out to us in the comment section. Till then, take care and start your preparation, and all the best with whatever you are doing. Bye.